مجھے گمان تک نہیں تھا کہ اس نے ٹی وی سیٹ کی انشورنس کرائی ہوگی۔ میں نے کہا، جب تم نے سیٹ دیا تھا تو اس کے دوسرے دن ایک نوجوان آدمی جیک سے ملنے آیا تھا۔ گلڈا نے بتایا، اس کا نام شاید لاسن تھا۔ اس نے سیٹ دیکھا اور لچھے دار باتیں بنا کر جیک کو پالیسی لینے پر آمادہ کر لیا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے ڈیلانی کا نام بھی اس نوٹ بک میں تحریر کر لیا تھا جو میں نے لاسن کو دی تھی۔ لیکن یہ انشورنس تو صرف سیٹ کی حد تک ہوگا۔ نہیں، مسٹر میکلین کہہ رہے تھے کہ اس پالیسی میں سیٹ کے مالک کو بھی حادثے کی صورت میں تحفظ دیا گیا ہے۔ میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کسی نے میرے جسم سے زندگی کی تمام حرارت چھین لی ہو۔ پالیسی $5000 کے لیے تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، گلڈا نے جواب دیا۔ میرا اطمینان، سکون، سب کچھ دھوپ میں شبنم کے قطروں کی طرح اڑ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ تحقیقات ہوں گی، اور انشورنس کمپنیوں کے بارے میں جتنا کچھ مجھے معلوم تھا اس کی بنیاد پر مجھے یقین تھا کہ انشورنس کمپنی ڈیلانی کی موت کو اس طرح قبول نہیں کرے گی جس طرح جیفرسن، ڈاکٹر میلارڈ یا کارونر نے قبول کر لیا تھا۔ $5000 چھوڑ، وہ $1 بھی اس وقت تک ادا نہیں کریں گے جب تک خود تحقیقات کرا کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ انہیں واقعی یہ رقم ادا کرنی ہے۔ میرا تمام پلان، یہاں تک کہ میری زندگی بھی، اس پالیسی کی وجہ سے خطرے کی زد میں آ گئی تھی۔ انشورنس کمپنی والے تحقیقات کیے بغیر رقم نہیں دیں گے۔ میں نے گلڈا سے کہا، کیا یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ تم تحقیقات کا خطرہ مول لو؟ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تم رقم کا مطالبہ ہی نہ کرو؟ گلڈا نے تیز نظروں سے مجھے گھورا۔ $5000 معمولی رقم نہیں ہوتی، خاص طور سے ان حالات میں جبکہ ڈیلانی کا قرض ادا کرنے کے لیے ایک ایک ڈالر قیمتی ہے۔ مجھے رقم کے لیے کلیم داخل کرنا ہی پڑے گا۔ یہ انشورنس کمپنی والے بہت گہرائی تک اتر جاتے ہیں، میں نے حتی الامکان سکون سے کہا۔ میں گلڈا پر یہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ اس خبر نے مجھے کتنا خوفزدہ کر دیا ہے۔ اپنی تحقیقات کے دوران وہ میرے اور تمہارے تعلقات کے بارے میں بھی معلوم کر لیں گے۔ کیسے کر لیں گے؟ گلڈا نے سخت لہجے میں کہا۔ انہیں صرف تحقیقاتی عدالت کے ریکارڈ اور موت کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑے گی۔ مسٹر میکلین نے مجھے یہی بتایا ہے۔ اس کے بعد وہ پالیسی کی رقم ادا کرنے سے انکار نہیں کر سکتے۔ اتنے زیادہ یقین سے کوئی بات مت کہو، میں نے جواب دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ انشورنس کمپنیاں کس طرح کام کرتی ہیں۔ وہ رقم کی ادائیگی سے بچنے کے لیے کسی قسم کی کوشش اٹھا نہیں رکھیں گے۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں کہ ڈیلانی نے خودکشی کی ہے، وہ کسی حادثے کا شکار نہیں ہوا، کیونکہ پھر ایسی صورت میں انہیں رقم نہیں دینی پڑے گی۔ انہیں صرف ایسی کوئی وجہ تلاش کرنے کی ضرورت ہوگی جس سے ڈیلانی کے خودکشی والے نظریے کو تقویت مل سکے، اور انہیں اس سے زیادہ اچھی وجہ اور کیا نظر آ سکتی ہے کہ تم اور میں اس سے چھپ کر محبت کر رہے تھے۔ تم خواہ مبالغے سے کام لے رہے ہو۔ ہرگز نہیں، میں نے تیزی سے کہا۔ اگر انہیں ذرا سا بھی شبہ ہو گیا کہ میرے اور تمہارے درمیان محبت کے تعلقات قائم ہیں یا رہ چکے ہیں تو وہ ہماری نجی اور ذاتی زندگی کے حالات اسی طرح چیر پھاڑ کر معلوم کریں گے جس طرح بھیڑیا اپنے شکار کو چیرتے پھاڑتے ہیں۔ اس بارے میں کسی خوش فہمی میں مبتلا مت ہو جانا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ رقم کی ادائیگی روکنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے، مگر وہ تمہیں مجبور کر دیں گے کہ اگر تمہیں اپنا کلیم وصول کرنا ہے تو عدالتی چارہ جوئی سے وصول کرو، اور پھر عدالت میں وہ کسی چرب زبان وکیل کے ذریعے تم پر وہ جرح کرائیں گے کہ تم حاضرین عدالت کے سامنے اپنے آپ کو عریاں محسوس کرنے لگو گی۔ وہ مجھے بھی عدالت کے کٹہرے میں کھینچ لائیں گے۔ اخبارات میں سرخیوں کے ساتھ عدالت کی کارروائی شائع ہوگی اور ساری دنیا کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے درمیان ناجائز تعلقات قائم تھے۔ گلڈا نے اس طرح میری طرف دیکھا جیسے وہ مجھے پاگل خیال کر رہی ہو۔ تمہاری باتیں مجھے خوفزدہ کر رہی ہیں ٹیری، اس نے کہا۔ آخر بات کیا ہے؟ کیا تم اس معاملے میں اس سے زیادہ جانتے ہو جتنا تم نے مجھے بتایا ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ اگر تم نے انشورنس کمپنی سے کلیم کیا تو کیا کچھ پیش آ سکتا ہے۔ میں نے جواب دیا، کیا ہم اس کارروائی کو روک نہیں سکتے؟ میں مسٹر میکلین سے کہہ تو سکتی ہوں، گلڈا نے کہا، مگر میرا خیال ہے کہ ضروری کارروائی پہلے ہی کی جا چکی ہوگی۔ مسٹر میکلین نے کہا تھا کہ وہ لاس اینجلس واپس جا کر پہلا کام یہی کریں گے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں انہیں فون کر کے منع کر دوں؟ میں ہچکچایا۔ اگر میکلین نے کلیم داخل کر دیا ہے تو اسے واپس لینے کا اقدام اور زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ ہم دونوں کی ذات فوراً شبے کی زد میں آ جائے گی۔ نہیں، میں نے آخر میں کہا، اب اسی طرح چلنے دو۔ ممکن ہے اس سے کوئی فرق واقع نہ ہو۔ ممکن ہے جس طرح تم کہتی ہو انشورنس کمپنی ہمیں پریشان کیے بغیر پالیسی کی رقم ادا کر دے۔ تمہیں یقین ہے کہ تم نے جیک کی موت کے بارے میں وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو تمہیں معلوم ہے؟ گلڈا نے پوچھا۔ تمہاری باتیں مجھے پریشان کر دیتی ہیں۔ تم اس طرح گفتگو کرتے ہو جیسے کسی نہ کسی طور پر اس حادثے سے میرا بھی کوئی تعلق ہے۔ دنیا والوں کی نگاہ میں تم اور میں دونوں مجرم ہیں، میں نے دوسری طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ بہرحال اب یہ بات بہت ضروری ہو گئی ہے کہ جب تک اس کلیم کا فیصلہ نہ ہو جائے
मैं तुमसे बिल्कुल अलहदा रहूं। अब लॉस एंजलिस में हमारे मिलने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तुम समझ रही हो ना? इंश्योरेंस कंपनी वाले जल्द ही अपने जासूसों की एक पूरी फौज तुम्हारी शबो रोज निगरानी पर लगा देंगे। अगर उन्होंने कहीं भी हमें यकजा देख लिया तो वो बड़ी आसानी से हमारे दरमियान कोई ताल्लुक मालूम करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मगर मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आखिर हमें इतना डरने और खौफजदा होने की क्या ज़रूरत है। गिल्डर ने कुछ झिल्लाते हुए कहा। मैं तुम्हें अखबारी पब्लिसिटी से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने जवाब दिया। अच्छी बात है टेरी, गिल्डा ने बेबसी से कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे यकीन नहीं आता, लेकिन अगर तुम ऐसा महसूस करते हो तो मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ये ही चाहते हो ना कि मैं उस वक्त तक तुमसे ना मिलूं जब तक क्लेम का फैसला ना हो जाए। हाँ, मुझे अफ़सोस है गिल्डा, मगर ये इंतहाई ज़रूरी है। मैं खड़ा हो गया। मुमकिन है तुम अभी इस बात को ना समझ सको, लेकिन अगर इंश्योरेंस कंपनी वालों ने हमारे बारे में मालूम कर लिया तो तुम खुद देख लोगी कि मैंने जो कुछ कहा था वो गलत नहीं था। मैं सेट लेकर जा रहा हूँ। मिस्टर मैकलेन ने कहा है कि जब तक इंश्योरेंस कंपनी वाले इसे न देख लें, सेट को यहीं रखा जाए। गिल्डा ने बताया। ये मेरे लिए एक और झटका था। ओह हाँ, मैं भूल रहा था, मैंने संभलते हुए जवाब दिया। अच्छा गिल्डा, जब तुम लॉस एंजलिस पहुंचकर किसी होटल में ठहर जाओ तो मुझे खत ज़रूर लिखना। फ़ोन मत करना। टेलीफोन ऑपरेटर लड़कियां दूसरों की कॉलें सुनती रहती हैं। मैं खुद भी तुम्हें खत लिखता रहूँगा। अच्छा टेरी, गिल्डा ने वादा किया। मैं उसे खुदा हाफिज कहकर ट्रक में जा बैठा। मैं इतना खौफजदा था कि चलते वक्त उसे प्यार करना भी भूल गया था। अगले 4 दिन तक कोई ख़ास वाक़या पेश नहीं आया। दिन के वक्त चूंकि मैं काम में मसरूफ़ रहता था, इसलिए किसी न किसी तरह वक्त गुजर ही जाता था, मगर रातें मेरे लिए क़यामत बनकर आती थीं। परेशान कुन ख़यालात कई कई घंटे नींद से महरूम रखते थे। 5वें दिन सुबह को मुझे गिल्डा का ख़त मिला। वो अब लॉस एंजलिस जा चुकी थी और उसने लिखा था कि एक छोटे से फ्लैट में ठहरी हुई है। वो मुलाजमत तलाश करने की कोशिश भी कर रही थी, मगर इस वक्त तक कहीं कामयाबी नहीं हुई थी। उसने लिखा था कि इंश्योरेंस कंपनी वालों ने मिस्टर मैकलेन से राब्ता कायम किया है और बताया है कि वो अपना एक नुमाइंदा टीवी सेट के मुआयने के लिए भेजना चाहते हैं। नुमाइंदा इतवार की सुबह को वहां पहुंचेगा, गोया कि कल, और ये कि मैं भी 11 बजे केबिन पहुंच जाऊं ताकि उसे सेट दिखा सकूं। उसने लिखा था कि वो केबिन की चाबी चटाई के नीचे रखाई है। दूसरे दिन 11 बजे मैं डेलानी के केबिन पहुंच गया। तकरीबन 2-3 मिनट बाद मैंने एक पिकार्ड कार को अपने ट्रक के करीब रुकते देखा। उसे एक चौड़े कंधों और गंदुमी रंगत वाला 30-32 साल आदमी चला रहा था। उसका चेहरा तमस्खर आमेज था। वो इस तरह कार से उतरा जैसे ही काम उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत तलब हो। कार से उतरकर वो मेरी तरफ बढ़ा। तुम मिस्टर रेगन हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने जवाब दिया। उसने मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ा दिया। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर रेगन। वो बोला। मैं स्टीव हरमास हूँ और नेशनल इंश्योरेंस का नुमाइंदा हूँ। तुम इस वाकये के बारे में कुछ जानते हो? मिसेस डिलानी का वकील कह रहा था कि तुम यहाँ मुझे वो सेट दिखाने के लिए मौजूद होगे जो हादसे की वजह बना है। कम से कम अभी वो उसे एक हादसा ही कह रहा था। मैं उसे ड्राइंग रूम में ले गया। वो सेट ये है, मैंने इशारे से बताया। उसने टीवी को बड़ी सरसरी नज़र से देखा और मुझे कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए वो खुद भी बैठ गया। इस क्लेम ने हमारी कंपनी में खासी हलचल पैदा कर दी है, उसने बताया। इतना हंगामा हो रहा है कि तुम गौर करो तो यहाँ से भी सुन सकते हो। कैसा हंगामा? मैंने पूछा। हमारे क्लेम डिपार्टमेंट इंचार्ज एक साहब हैं, उनका नाम है मेडिक्स। हरमाउस ने जवाब दिया। उनके दिमाग में एक खतरे की घंटी लगी है। जब भी कोई क्लेम दाखिल किया जाता है, वो उसे इस बारीक बीनी से देखता है जैसे वो कोई अंडा है जिसे 2 साल पहले किसी मुर्गी ने दिया था। वो ये देखने के लिए छिलका तोड़ने की भी जहमत नहीं करता कि अंडा गंदा है। हर क्लेम के साथ यही सलूक किया जाता है। एक साल के दौरान 20 से 30 हजार तक क्लेम दाखिल किए जाते हैं। इनमें से 2% या इससे भी कुछ कम बोगस क्लेम होते हैं, और मेडिक्स इससे पहले कि हमारे जासूसों को तहकीकात करने का मौका मिले, उनके बोगस होने का पता चला लेता है। वो इसके लिए अपनी छठी हिस्से काम लेता है और अभी तक ये रिकॉर्ड है कि उसने कभी कोई गलती नहीं की है। उसने मेरी तरफ देखा और आहिस्ता से मुस्कुराया। ये क्लेम भी जब मेडिक्स के पास आया तो उसने इसे भी बोगस करार दिया। चुनाचे मुझे इसकी तहकीकात का हुक्म दिया गया है। इस क्लेम में उसे क्या बात गलत नजर आई? मैंने पूछा। इसके जवाब में मेडिक्स ये कहता है कि जब से हमने टीवी सेट की इंश्योरेंस शुरू की है, हम कोई 20,000 पॉलिसियां फरोख्त कर चुके हैं। हमारा रिकॉर्ड बताता है कि हमने अब तक एक क्लेम भी हादसात के खिलाफ ज़ाती तहफ़्फ़ुज़ की शर्त के तहत अदा नहीं किया।
दरअसल ये शर्त महज कारोबारी नुक्तः नज़र से टीवी मालिकान के लिए एक कशिश पैदा करने के लिए शामिल कर ली गई है। हमने इसकी पाबंदी करने के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। तुमने सोचा हो या ना सोचा हो, लेकिन इस मामले में तो ऐसा ही मालूम होता है जैसे तुम्हें क्लेम की रकम अदा करनी ही पड़ेगी। मैंने जवाब दिया। मुमकिन है तुम्हारा कहना ठीक हो, हरमौस ने कंधे उचकाते हुए कहा। मुझे तो मेडिक्स के नुक्तः नज़र से इसकी तहकीकात करनी है। यूं अगर हालात नॉर्मल किस्म के होते तो दूसरी बात थी, लेकिन यहाँ कोई गैर मामूली बातें नजर आ रही हैं। मसलन इंश्योरेंस पॉलिसी को सिर्फ 5 दिन गुजरे थे कि यह हादसा पेश आ गया, और वो शख्स जिसने पॉलिसी खरीदी थी इससे पहले कि पॉलिसी उसके हाथ में आए मर गया, और उसे दफन करने की इतनी जल्दी थी कि लाश का पोस्टमार्टम भी नहीं किया गया। ये हालात एक अहमक से अहमक इंश्योरेंस एजेंट को भी शुबे में मुब्तला कर सकते हैं। इस अंदाज में हालात बयान करके तुम किसी इंसाफ पसंदी का सबूत नहीं दे रहे हो। मैंने जवाब दिया। हरमौस ने एक कहकहा लगाया। तुमने अभी मिस्टर मैडिक्स से मुलाकात नहीं की है। वो बोला। वो टेलीफोन पर इस तरह हिदायत दे रहा था जैसे एक इसी क्लेम की अदायगी पर पूरी कंपनी की बका का दारोमदार है। वो अपनी जगह से उठा और टीवी सेट के करीब आकर बड़ी गहरी नज़रों से उसका जायजा लेने लगा। सेट तो बहुत उम्दा बना हुआ है, उसने कहा। तुम वाकई अपने काम के माहिर मालूम होते हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। लाश सबसे पहले तुमने ही देखी थी? उसने पूछा। हाँ, मैंने कॉरोनर की रिपोर्ट पढ़ी है, हरमौस ने बताया। साउंड कंट्रोल का एक तार अलग हो गया था। डिलानी ने उसे लगाने की कोशिश की और इस कोशिश में कोई मेन करंट सप्लाई तार छू लिया। दुरुस्त है? हाँ, हादसा बज़ाहिर इसी तरह हुआ था, मैंने जवाब दिया। वो झुककर सेट के अंदर झांकने लगा। उसने किन तारों को छू लिया था? हरमौस ने पूछा। मैंने आगे बढ़कर उसे वो तार दिखाए। वो करंट से गैर महफूज स्क्रू ड्राइवर से काम ले रहा था। हाँ, वो स्क्रू ड्राइवर मुझे उसकी लाश के करीब पड़ा हुआ मिला था, मैंने जवाब दिया। हरमौस सीधा खड़ा हो गया। वो कमर से निचले हिस्से से अपाहज था और व्हील चेयर में चला फिरा करता था। हरमौस ने कमरे के एक गोशे में रखी हुई व्हील चेयर की तरफ इशारा करते हुए पूछा। हाँ, उसकी बीवी के लिए तो उसका अपाहज होना वबाले जान बन गया होगा। हरमौस बोला। मैंने सुना है कि वो बड़ी खूबसूरत है, हर चीज़ अपनी अपनी जगह मौजू व मुतनासिब। उसने हाथों की हरकत से फजा में एक औरत की जिस्मानी शक्ल बनाते हुए कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं अपनी जगह पूरी तरह होशियार और चौकन्ना था। तुमने तो उसे देखा होगा? हरमौस के सवालात जारी थे। हाँ, तुम्हारे ख्याल में उनकी अज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार थी? इसका मौजूदा हालात से क्या ताल्लुक है? मैंने नागावाली से कहा। इसके अलावा मैं कोई फालतू और बेकार आदमी नहीं हूँ मिस्टर हरमॉस। मिसेस डेलानी ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं तुम्हें सेट दिखा दूँ, वो मैंने तुम्हें दिखा दिया। मेरा काम ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब मेरा यहाँ ठहरना गैर ज़रूरी है। हरमॉस एक मरतबा फिर कुर्सी पर जाकर बैठ गया। नाराज़ मत हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं तुम्हारा वक्त बगैर किसी मुआवजे के ज़ाया नहीं करूँगा। ये सेट तुमने तैयार किया था, तुमने ही डेलानी की लाश सबसे पहले देखी, और तुम इस इलाके से भी अच्छी तरह वाकिफ हो। अगर हम तुम्हारी टेक्निकल खिदमात का मुआवजा $10 रोजाना के हिसाब से पेश करें तो कैसा है? मैं कुछ हिचकिचाया, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं इनकार करूंगा तो वो किसी और की खिदमत हासिल कर लेगा। इसके बरखिलाफ अगर मैं हामी भर लूं तो तहकीकात में खुद भी एक तरह से शामिल रहूंगा, और मुझे मालूम होता रहेगा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। चलो मंजूर है, $10 रोजाना, मैंने जवाब दिया। उसने अपनी जेब से 10-10 डॉलर के 2 नोट निकालकर गेंद सी बनाई और मेरी तरफ उछाल दी। अगर उनके बाहमी ताल्लुकात खराब होते तो क्या तुम्हें मालूम हो जाता? हरमौस ने पूछा। जहाँ तक मुझे मालूम है उन दोनों में कभी कोई झगड़ा मेरे सामने नहीं हुआ, मैंने बताया। लेकिन जाहिर है कि मैं हर वक्त उनके साथ नहीं रहता था। मैं सोच रहा था कि कहीं उसे ये मालूम ना हो जाए कि मैं गिल्डा को एक मर्तबा बाहर खाने के लिए ले गया था। हरमौस कुछ देर तक टीवी को देखता रहा। अभी वो बिल्कुल इसी तरह पड़ा हुआ था जिस तरह डेलानी की मौत के दिन पाया गया था। उसका बैक कवर भी खुला था। जरा इसकी पिछली तख्ती दोबारा लगा दोगे? हरमौस ने कहा। क्यों नहीं, मैंने जवाब दिया और तख्ती दोबारा लगा दी। हरमौस मुझे लगाते हुए देखता रहा। उसकी पेशानी पर बल पड़े हुए थे। अब जरा इस पहिए वाली कुर्सी पर बैठ जाओ, हरमौस ने दूसरी हिदायत की। मैं चौंक गया। मेरा दिल पहली मर्तबा कुछ खौफ महसूस करने लगा। मकसद क्या है? मैंने उसे घूरते हुए पूछा। मैं बड़ा सुस्त आदमी हूँ, हरमौस ने मुस्कुराते हुए कहा। जब मैं किसी आदमी को अपना कोई काम करने के लिए माकूल मुआवजा देता हूँ तो मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे बदले का काम भी वही करता रहे। मैं कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के लमस ने मेरे रगों पे में एक ठंडी लहर दौड़ा दी। डिलानी इस कुर्सी में 4 साल बैठा रहा था।
अब तुम कुर्सी चलाते हुए टीवी सेट के पास जाओ और कुर्सी पर बैठे बैठे सेट का बैक कवर अलग कर दो। मेरा मतलब है ठीक उसी तरह जिस तरह डेलानी ने अलहदा किया होगा। मैंने हरमौस की तरफ देखा, लेकिन वो क्या देखना चाहता है, ये बात मेरी समझ में उस वक्त आई जब मैं तख्ती के दो ऊपरी पेज खोल चुका था। कुर्सी पर जिस तरह मैं बैठा हुआ था, मैंने अचानक महसूस किया कि इस पोजीशन पर बैठे हुए तख्ती के दो निचले पेचों तक पहुंचना नामुमकिन है, और चूंकि मैं उन निचले पेचों तक नहीं पहुंच सकता था, इसलिए ये बात आपसे आप समझ में आ जाती है कि इस तरह ये बात दिलाने के लिए भी नामुमकिन थी कि वो कुर्सी पर बैठे हुए टीवी के बैक कवर के निचले पेज खोल सकता। और अगर जब वो ये पेज खोल ही नहीं सकता था, तो इलेक्ट्रिक करंट का शिकार किस तरह हो सकता था। ये थी मेरी पहली बड़ी और ख़तरनाक गलती। वो कत्ल की स्कीम, जिसे मैं हर एतबार से मुकम्मल ख्याल कर रहा था, मेरे देखते देखते रेत के घरौंदे की तरह ज़मीन बोस हो चुकी थी। मैं काफ़ी देर तक एक बेजान मुजस्मे की तरह बैठा हुआ इन दो पेचों को घूरता रहा। मैं जानता था कि हरमौस मुझे बगौर देख रहा है। मैं समझ गया कि उसने अपनी ज़हानत से ये बात पहले ही नोट कर ली थी कि पहियों वाली कुर्सी पर बैठे हुए टीवी के तख्ते के निचले पेज नहीं खोले जा सकते। मुझे बहरहाल कुछ करना था। मैं कुर्सी पर थोड़ा सा आगे खिसका और अपने पैरों को कुर्सी के फुटबोर्ड से हटाकर फर्श पर टिकाते हुए जब मैं झुका तो मेरा सीधा हाथ बमुश्किल पेचों तक पहुंच सका। मैं उन्हें खोलने जा रहा था कि हरमौस ने तेजी से कहा, वहीं रुक जाओ। उसके लहजे की तेजी ने मेरे जिस्म में सर्दी की तेज लहर दौड़ा दी, मगर मैंने खुद पर काबू रखते हुए उसकी तरफ देखा। ये बड़ी दिलचस्प बात है, वो बोला। डेलानी का निचला धड़ बेकार था। वो इन दो पेचों तक नहीं पहुंच सकता था। क्यों नहीं? मैंने कहा। जरा देखो कि तुम किस तरह बैठे हुए हो। एक अपाहज आदमी इस तरह नहीं बैठ सकता था। मगर इसके बावजूद वाकयात बताते हैं कि उसने तख्ती खोल ली थी, मैंने जवाब दिया। मैं दिल ही दिल में अपने आप को बुरा भला कह रहा था कि मैंने तख्ती के निचले पेज इसी जगह लगा दिए थे, और स्कीम बनाते वक्त इस बात पर गौर नहीं किया कि डिलानी के लिए अमलन उन्हें खोलना नामुमकिन था। अगर उसने वाकई तख्ती अलहदा की थी, तो फिर उसके हाथ ज़रूर किसी गोरिल्ले की तरह लंबे होंगे। हरमौस ने कहा, हटो तो ज़रा, मैं भी कोशिश करके देखना चाहता हूँ। मैं कुर्सी से उठकर एक तरफ हो गया और उसे कुर्सी पर बैठकर निचले पेचों तक पहुंचने की कोशिश करते देखने लगा, मगर ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन हो सका जब उसने कुर्सी के किनारे पर बैठकर और अपने पैर फर्श पर टिकाते हुए उन्हें खोलने की कोशिश की। वो इसके बाद भी कुछ देर तक कुर्सी पर बैठा सोचता रहा। अगर मुझे सही याद है तो गालिबन डिलानी ने स्क्रू ड्राइवर स्टोर रूम की अलमारी से उठाया था। आखिर उसने कहा, क्या तुम बता सकते हो कि वो स्टोर रूम किस तरफ है? हाँ, राहदारी के आखिर में, मैंने जवाब दिया। ज़रा मुझे चलकर दिखाओ तो, उसने कहा, और फिर वो इसी तरह कुर्सी पर बैठे हुए पहिए चलाता हुआ मेरे साथ चला। मैंने राहदारी के आखिर में पहुंचकर स्टोर रूम के दरवाजे की तरफ इशारा किया। हरमौस ने कुर्सी आगे बढ़ाई और दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैं उसकी एक एक हरकत को गौर से देख रहा था और अपनी हमाकत पर मातम कर रहा था कि मैं एक ऐसे प्लान को मुकम्मल समझता रहा जो तहकीकात की पहली मंजिल पर ही पानी के बुलबुले की तरह फट गया। औजारों का बक्स कहाँ रखा जाता है? उसने पूछा। इस अलमारी के ऊपरी खाने में, मैंने जवाब दिया। डिलानी ने एक छड़ी की मदद से बक्स को नीचे गिरा लिया था। मैंने औजार फर्श पर बिखरे हुए पाए थे। वो छड़ी कहाँ है? उसने सवाल किया। मैंने छड़ी उसके हाथ में दे दी। छड़ी का एक सिरा एक हुक की तरह मुड़ा हुआ था। हरमौस ने छड़ी का हुक औजारों के बक्स के हैंडल में डालकर खींचा। बक्स एक धमाके के साथ नीचे आ रहा और तमाम औजार फर्श पर इधर उधर बिखर गए। उसने कुर्सी पर बैठे बैठे झुककर स्क्रू ड्राइवर उठाने की कोशिश की, मगर उसका हाथ फर्श तक नहीं पहुंच सका। ऊंची कुर्सी पर बैठे हुए ऐसा करना मुमकिन ही नहीं था। उसने मेरी तरफ देखा। तुमने देखा? वो बोला। ये तजर्बा भी यही साबित करता है कि मिस्टर डिलानी के हाथ गैर मामूली लंबे होने चाहिए। मैंने जवाब नहीं दिया। मैं जवाब दे ही नहीं सकता था। अपनी घबराहट छुपाने के लिए मैं सिगरेट सुलगाने लगा। मुझे उसके दूसरे इक़दाम का इंतज़ार था। वो कुर्सी से उतर आया और आप ही आप गुनगुनाते हुए कुर्सी को ड्राइंग रूम की तरफ ले चला। मैं उसके पीछे था।